तो डिफरेंशिएशन चैप्टर तो कंटिन्यू करो आमी एक्सरसाइज 5.5 ত एंट्री करिम আজি यार फर्स्ट क्वेश्चन तो सुन differentiate the functions given in exercises 1 to 11 with respect to x यार क्वेश्चन तो আছে এনেকুৱা ধৰণৰ क्वेश्चन 1 cos x into cos twice x into cos 3x product of simple functions এনেকুৱা যদি simple function of product কিছুমান থাকে তেতিয়া হলে আমি differentiation কৰিবলৈ লগাৰিথমৰ হেল্প লওঁ যেনেকৈ exponential function or differentiation আমি অলৰেডি 5.4 ত কৰিছো ঠিক তেনেকৈ ইয়াত লগাৰিথমিক প্ৰপাৰ্টিজ আৰু লজ যিবোৰ আছে এইবোৰ ইউজ কৰি এইখিনি simplified weight আমি differentiation কৰিব লাগিব exampleৰ থ্ৰুদি how to differentiate with the help of logarithmic properties তাৰ explanation কৰিব খুজিছো আৰু ইয়াতে ডিফাৰেন্সিয়েশনো হ'ব আৰু লগাৰিথমিক যিখিনি ল আছে তাৰ এপ্লিকেশন খিনি আমি প্ৰবলেম সলভিংৰ মাজেদি ডিসকাস কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে আৰু about logarithm separately আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব মই ইয়াত মেইনলি ফোকাস কৰিছো ডিফাৰেন্সিয়েশনত ঠিক আছে so here let y is equal to cos x into cos twice x into cos 3x. Now, taking log on both sides mane to equal sign, to right side aru, to left side. Ete ami yat log lom, to taking log, to log, mane logarithmic function or log 2, log on both sides. We get on both sides mane equal sign to left আৰু রাইট দুই ফালে এই log 2 আমি লগাই দিম তেতিয়া আমি কি পাম log y পাম ইয়াত log y এটো ইয়াৰ পৰা আহিছে ইকুৱেল নেক্সট ইয়াত কি আহিব ধৰি পাইছে log এটো log আহিলে উইদিন ব্ৰেকেট এটা ফাংচন কিটা আহিব cos x into cos next to cos twice x next cos 3x ঠিক আছে এতিয়া লগাৰিথমৰ যেটো আমাৰ প্ৰডাক্টৰ প্ৰপাৰ্টি মানে যদি log m into n into p এনেকৈ কেবাটাও ফাংচনৰ প্ৰডাক্ট থাকে বা কোৱান্টিটি প্ৰডাক্ট থাকে তেতিয়া লগে এটো কেনেকৈ এক্সপান্ড কৰিবলৈ শিকায় বা কৰিব পাৰি উইথ দি হেল্প অফ log let us see ইয়াত চাবা প্ৰডাক্ট ৰুল অফ লগাৰিথম so log of m এটা quantity n another quantity এটো product হৈ আছে into np তে তিনটা quantity আছে যদি আমি এটো এক্সপান্ড কৰো তো এটোই রুল টু product রুলৰ log m এটো plus log n plus log p মানে যেটা quantity এটা থাকক এটো m and p q যদি বহুত বেছি থাকে তেতিয়া আমি এনেকে plus মানে every product is to be converted to plus but along with log ঠিক আছে তো log to মানে আমি এনেকে দি যাব লাগিব এনেকে প্ৰত্যেক টুতে ক্লিয়াৰ হৈছে ইখিনি যদি বুজি পাইছো তেতিয়া হলে ইউজিং দি প্ৰডাক্ট ৰুল এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হ'ব log y নেক্সট লাইনত log y আহিব এটো ইকুৱেল log of cos x এটো m বুলি ধৰিম log cos x প্ৰডাক্টৰ কাৰণে কি m into যেটা প্লাস আহিব এটো then cos twice x with log এটো log 2 লাগিব cos twice x 2 লাগিব log cos twice x log m plus log n next ইয়াত আহিব এটো into কাৰণে কি আহিব plus then log cos 3x ঠিক আছে এটো log y is equal to a expression to পালো এতিয়া আমি ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিম differentiating both sides with respect to x মানে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে with respect to x হয় না so we are differentiating with respect to x ठीक है अब इसका डिफरेंशिएशन log y d by dx of log y इस तरीके से आपने लिख लिया ठीक है इक्वल d by dx यहाँ ये फिर log of cos x first function plus log of cos 2x था
ये प्लस नेक्स्ट आएगा log cos 3x। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x है মানে কিন্তু ভেৰিয়েবল দুটা এটো হৈ গ'ল উইথ ৰেসপেক্ট টু x কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ফাংচনটো ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে y ওপৰত তো হেকাৰণে ভেৰিয়েবল দুটা বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিম আমি তুমি চাবাচোন কি কৰিম 1/y dy by dx এটো বুজি পাই গৈছো is equal to next এটো ডিফারেন্সিয়েট কৰিবলৈ হলে সিমিলারলি মানে এটো ভেৰিয়েবল কিটা চেঞ্জ হৈ থাকিলে আমি এনেকে কৰো হয়নে ইয়াত এতিয়া এটো যেহেতু অলপমান ডাঙৰ তো আমি এটো কি কৰিম x is replaced by cos x আমি ৰিপ্লেস কৰি কামটো কৰিম we will do it by replacing এতিয়া আমি next d by d cos x লিখো d by d cos x function is same log cos x but d cos x is to be here will differentiate again d cos x with respect to x and এতিয়া এটো x মিলি গল ঠিক আছে next d by d cos এটো কৰিবলৈ হলে cos x অৰ ঠাইত আমি cos twice x ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে d by d cos twice x ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াতে আমি কি লিখিম হে ফাংশনটো লিখিম log cos 2x এটো লিখিলো ঠিক আছে now d cos 2x is to be differentiated again ये d cos 2x with respect to 2x इसमें x था x से डिफरेंशिएट किया गया फिर ये cos 2x so we are differentiating with respect to 2x d2x इसको फिर से करना पड़ेगा d2x with respect to x now it is done ये हो गया आपका चेन रूल इस तरीके से आप आगे बढ़ाते जाना ये x और x खत्म स्टॉप कर देना इधर फिर आगे आपका बचा हुआ है ये log cos 3x this is to be done by writing plus d by d cos 3x right जैसे cos 2x जैसे cos x इस तरीके से क्योंकि cos 3x है ना cos 3x से करना पड़ेगा चेन रूल d by d cos 3x फिर फंक्शन log cos 3x इसमें इसको फिर करो d cos 3x किससे करना है इसमें x और 3x because it is 3x so we will do it by 3x right ये समझ गया फिर d3x को x से करना let's stop here इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं now हम लोग क्या करेंगे इसका जो डिफरेंशिएशन है ठीक है ये कैसे करेंगे देख लेते हैं अलग से d by d cos x log cos x ये स्ट्रेट वे डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे ये फॉर्मूला तो ये है d by dx log x इक्वल टू 1/x देखो सब में x है x x x ठीक है तो यहाँ पे क्या है d by d cos x है log of cos x है मतलब cos x है cos x है जैसे x x log का सार यहाँ पे cos x है तो ये भी cos x है तो आंसर में क्या आना चाहिए 1/cos x आना चाहिए ठीक है तो इसको हम 1/cos x क्लियर इसको कंपेयर करके देख लीजिए फिर d cos x को आपको करना पड़ेगा फिर से d cos x को with respect to x तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस sin x ठीक है मतलब यहाँ पे आपको माइनस sin x लिखना पड़ रहा है ये सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दिस मस ये इसको इससे रिप्लेस कर देना है ठीक है आगे सेकेंड वाला d by d cos 2x इसको log cos 2x को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये सेम फॉर्मूला है d by dx और log x 1/x मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 1/cos 2x लिखा आपने 1/cos 2x इसको फिर आप करना पड़ेगा चेन रूल का मुताबिक देखिए d cos 2x ठीक है विथ रेस्पेक्ट टू 2x ये सही है मतलब आपको अभी क्या लिखना है इसमें फॉर्मूला क्या है
cos x इज इक्वल माइनस साइन एक्स, तो इसमें माइनस साइन ट्वाइस एक्स, ओके, माइनस साइन ट्वाइस एक्स। नाउ इसको फिर करना पड़ेगा आपको d2x बाई एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 तो आगे आएगा, dx बाई एक्स 1 होगा, 2 इंटू 1 ये, ठीक है। तो फिर आपका रहा क्या, d cos 3x log cos 3x वो वाला रह गया, ये d cos 3x log cos 3x। इसके लिए आपको करना क्या है, सेम प्रोसीड्योर 1 बाई एक्स यूज़ करना है, ये याद भी रह जाएगा, ठीक है, बार बार करने से। d cos 3x log cos 3x 1 बाई cos 3x, फिर इसको करने से लिखिए इधर d cos 3x बाई d 3x, ठीक है, तो आएगा माइनस साइन 3x, इधर ये माइनस साइन x का फॉर्मूला अप्लाई कर देने से माइनस साइन 3x, फिर d 3x को करना पड़ेगा d 3x बाई dx विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1। समझ में आ रहा है ये, हैव यू अंडरस्टूड दिस, 3 is taken out, dx by dx which is 1, okay, all these value are to be replaced in their respective places। आप देखिए इसके लिए आपको क्या मिला था, 1 बाई cos x, देखिए 1 बाई cos x माइनस साइन x, ये उसको आप लिखिए उधर, ये 1 बाई cos x माइनस साइन x, राइट। और फिर इसके लिए डी वाई डी एक्स ऑफ cos 2x log cos 2x, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ये निकल के रखा था, इसका 1 बाई cos 2x माइनस फॉर दिस माइनस साइन 2x फॉर दिस, एंड दिस इज 2 इंटू 1, एंड ये पूरा का पूरा वहाँ जाके रिप्लेस होगा इधर इस जगह पे, ठीक है, 1 बाई cos 2x माइनस साइन 2x 2 इंटू 1 फॉर दिस पार्ट। सिमिलरली फॉर दिस ये हम लोग को मिला था 1 बाई cos 3x माइनस साइन 3x 3 1, ठीक है, और ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये 1 बाई वाई, एक्चुअली हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, वी आर गोइंग टू फाइंड dy बाई डी एक्स, इज नॉट इट, सो y विल बी देयर इन दिस पोजिशन एंड रेस्ट लेट्स सी व्हाट हैपन। ये y इधर आ गया, देखा है ये y, बाकी 1 बाई cos x माइनस साइन x, 1 बाई cos 2x माइनस साइन 2x इंटू दिस पार्ट, ये बाकी एज इट इज़ है, जस्ट 1 बाई y वाला इधर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है। नाउ दिस y इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ओरिजिनल जो फंक्शन था, ये y, अब इक्वेशन में जो y हम लोग यूज़ किया था उसको डाल देना है, ठीक है, दिस वन cos x सिंपल प्रोडक्ट ऑफ सिंपल फंक्शंस जो था वो, ठीक है, बाकी एज इट इज़ रहेगा, तो मेजर पार्ट हो गया, और बाकी अरेंज करना है, माइनस इधर में भी माइनस, इधर में भी माइनस, माइनस यू कैन टेक कॉमन, राइट। सो पहले लिखते हैं माइनस, और ये साइन बाय कॉस मतलब 10x हम लिख सकते हैं, साइन ट्वाइस एक्स बाय कॉस 2x, सो 10 ट्वाइस एक्स, साइन 3x बाय कॉस 3x, 10 3x वी कैन राइट, सो 2 10 ट्वाइस एक्स, राइट। इस तरीके से लिखेंगे तो ये होगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, और ये माइनस cos x cos 2x cos 3x, ये ओरिजिनल y का जगह में आ गया, बाकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हुआ। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन फॉर द फर्स्ट फंक्शन। ये लॉग कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया होगा, ये नहीं तो बहुत लंबा होना था, अब लॉगरिथमिक जो रूल्स है वो यूज़ किया है हम लोग, ठीक है। और एक देखते हैं, टू बी फेमिलियर विद दिस यूज़, राइट। देखते हैं आगे, ये है सेकंड क्वेश्चन, इसको आप एज इट इज़ y एज्यूम कर लीजिए, सो दैट वी कैन राइट dy बाई डी एक्स ना, y इज इक्वल टू ये पूरा फंक्शन आएगा इधर, ठीक है। नाउ
taking log on both sides, इधर और इधर, taking log on both sides, ठीक है। इस तरीके से आप लिखो और फिर यहाँ log y इसके लिए इक्वल, ठीक। नेक्स्ट log आएगा और क्या, पूरा फंक्शन, ठीक। ये नाउ दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंट एज हाफ, नो, हम लोग हाफ लिख सकते हैं इसका जगह में। देखिए नेक्स्ट लाइन में log y which is equal to log of, now within bracket instead of this root we are writing here half, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये हाफ, अगर log का जो प्रॉपर्टी है जब एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट हम लोग आगे लिख सकते हैं, ठीक। कैसे, ऐसे हाफ ऑफ log ऐसे करके। एक्सपोनेंट जो होता है दैट कैन बी रिटन इन फ्रंट, राइट, log ऑफ। नाउ दिस वन, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये है पावर रूल, ठीक है, पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। ये जो n है ये पावर है। नाउ दिस n इज रिटन इन फ्रंट, n ऐसे करके, फिर log m जो बेस था ये log एज इट इज, ठीक है। मतलब हाफ को आप आगे ला सकते हैं, ये सॉरी ये जो पावर है उसको, n log m। तो इस तरीके से हम लोग हाफ को आगे लाया था। दिस इज एक्चुअली रूल, ठीक है। फिर साथ में ये भी, ये तो आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन रूल भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन रूल है, ये इसको भी देख लीजिए। क्या है ये, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, रेशियो का ये प्रॉपर्टी है। log m, ये आप इसके लिए खाली माइनस यूज़ करना है। दिस इज log m माइनस log n। ये डिवीज़न होगा तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस यूज़ करना है, ठीक है। दिस इज अबाउट आवर फार्मूलाज व्हाट इज टू बी यूज्ड नाउ, ठीक है। तो हियर हाफ कैसे आ गया ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 इतना फैक्टर होगा, 1 2, और ये है फिर रेशियो में भी है m न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे में भी है। तो मतलब आपका प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल दोनों यूज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर m, और फिर डिनोमिनेटर n, m बाय n यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सो हियर log y हाफ, ये आएगा log, ठीक है। log 2 आएगा ही। log x माइनस 1 क्यों आया, ये m इंटू n, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे इस जगह पे अभी प्लस आएगा, log ऑफ x माइनस 2, ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज करके। फिर नेक्स्ट आएगा ये डिवीजन वाला रेशियो, माइनस यूज करते हैं, log ऑफ x माइनस 3। फिर प्रोडक्ट के लिए आएगा इधर प्लस, बट दिस इज इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का आगे माइनस साइन आएगा ना, माइनस log m। तो इसलिए ये जो x माइनस 4 डिनोमिनेटर का है, इसीलिए इसका आगे माइनस x माइनस ये आएगा, माइनस log x माइनस 4। एग्जैक्टली यहाँ पे भी x माइनस 4 के लिए आएगा माइनस log ऑफ x माइनस 4, राइट। सो नेक्स्ट विल डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स log y, इसको इधर, और फिर dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, ऐसे करके। मतलब हम लोग को दो फॉर्मूला चाहिए, एक ये है और एक ये log का ही है, लेकिन log ऑफ x माइनस a मतलब कांस्टेंट, ठीक है। x माइनस f जो फंक्शन है ये कांस्टेंट है,
ठीक है, तो ये उसका रूल देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, एक्स का जगह में 1/y लिखेंगे, ठीक है, 1/y, फिर चेन रूल अप्लाई किया जाए dy बाई डी एक्स, इस तरीके से। ओके, अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस है, ये फॉर्मेट, मतलब पीछे कांस्टेंट है, फिर इससे ये अगर हो जाए तो हम लोग का सभी हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, जो है ये कांस्टेंट है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y समझ लीजिए आप, इसको आप y समझ लीजिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 1/y, राइट, 1/y मीन्स नाउ 1/x माइनस a, ये आ गया। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस है, मतलब y का जगह में ये बैठ रहा है x माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो सेम ये एज इट इज बैठेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ a कांस्टेंट, इसका क्या होगा, ये बाकी सब एज इट इज रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ये 0, मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 कर दिया, और फॉर दिस वी विल गेट 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये 1 आ गया, और इसका प्रोडक्ट होगा सेम 1/x माइनस a। दिस इज एक्चुअली आवर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब 1 होने से यहाँ पे 1/x माइनस 1, 2 होने से 1/x माइनस 2, अगर 3 1/x माइनस 3, स्ट्रेट कट, if we know this expression how to differentiate it, is not it? तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ log y, ऑलरेडी वी गॉट डिफरेंशिएशन ऑफ log y इज इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इसका हाफ log of x minus a, which is equal to only 1/x minus 1. This can be easily written, ये 1/x minus 1, ठीक है ना, प्लस for this 1/x minus 2, okay, now minus 1/x minus 3, similarly 1/x minus 4, and then here minus 1/x minus 5. So this is our differentiation. Now this y will be written here, then we will get dy by dx, that is what our target is, not it? तो ये y को इधर लिखना था, ठीक है, ऐसे मिल गया ये पूरा लाइन हम लोग को। Now y is to be replaced by the given function, ठीक है। सो हाफ ये पूरा का पूरा इधर देखा है 1/x minus 1, 1/x minus 1, 1/x minus 2, minus of 1/x minus 3, minus of 1/x minus 4, minus of 1/x minus 5, तो बचा क्या हाफ, इस हाफ टू आ गया, और y के लिए वो जो अपना फंक्शन था वो। सो दिस इज आवर dy by dx. I think you understood. Okay, thank you.